Good morning, students. Today we are going to discuss about growth models. In the previous lecture, we have already discussed about various attributes of the population. We have also discussed how the population increases or decreases at a particular habitat. Today we are going to discuss about various growth models in case of population. So let us start with the topic. Now, as you can see on the screen, growth model of population. First one is called as exponential and the second one is called as logistic growth. Firstly, we'll be discussing about the exponential growth. Suppose in a particular habitat, if you get a lot amount of food for the organism, if there is a sufficient amount of food which is available for the organism of a particular species or various species, suppose they are thriving in a particular habitat, what will happen? The growth, or you can say the population of that particular species or a group of species will start to increase. And if suppose there are no checks and balances, if the predator is not present and the food is available in a very huge amount, so no limiting factor is available, the growth will be exponential. Now, we have observed exponential growth in case of various organisms in our own life cycle. जरा सोचिए, जब बरसात का समय होता है, आप देखते हो इंसेक्ट्स का नंबर अचानक बढ़ जाता है. दैट इज अ केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. लेकिन लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑलवेज अ टाइम लिमिटिंग थिंग. यानी कि एक पर्टिकुलर समय तक ही होगा वो. It cannot continue for a very long period of time. Now, one of the factors may become limiting. In case of our country, especially during the month of August to November, you see a large number of insects, they are born and then they die. Now, why do they die? The main reason is climate, or you can say change in weather, change in season. That becomes the limiting factor. तो अगर एक लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो बट नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगी. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन लिटिल डिटेल. Ideally, when the resource in the habitats are unlimited and there are no barriers, season is suitable and predators are not present, as Darwin observed while developing his theory of natural selection, the population grows in an exponential or geometric fashion. Now, this exponential growth is usually observed in a smaller organism, not in very large organism as such. Now, let us talk about exponential growth equation. dn upon dt, as you can see, is equal to r max into n. Now, dn is the change in number of individuals in the population, dt is change in time, n is number of individuals. Okay, r represent maximum per capita rate of increase or intrinsic rate of natural increase कहते हैं r को. r का मतलब होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. ठीक है, तो इस r पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ग्रोथ फैक्टर. ओके, now let us talk about the equation for exponential growth. dn upon dt, r को हम b माइनस डी के टर्म्स में ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में b माइनस डी लिखा हुआ है इनटू n. यहाँ n का मतलब होता है पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. नाउ लेट b माइनस डी इज इक्वल टू r. r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn. b माइनस डी को हमने r ले लिया यहाँ पे, r इंटू n. तो ये उससे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt, वेयर n इज पॉपुलेशन साइज, nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, मतलब कुछ समय के बाद. n0 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम जीरो है, जब एकदम जीरो पे टाइम था, अभी हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उसको हम लेंगे n0. और nt का मतलब है आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम हैज पास्ड. नाउ r का हमने मतलब आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. e का मतलब यहाँ पे है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम.
और वैल्यू दी हुई है 2.71828। यहाँ बी का मतलब बर्थ रेट होता है और डी का मतलब यहाँ पे डेथ रेट होता है। तो आइए चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है, ये वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी दी हुई है, एन दिया हुआ है देखिए आप, और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, आप ये देख रहे हैं एकदम ऐसे सीधे चला गया, और इसका फॉर्मूला है डी एन अपॉन मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिपेंड यहाँ पे कर रहा है आर पे, यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, दैट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इनटू एन, मतलब उस समय की पॉपुलेशन क्या है, और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस इन नेचर। we won't find population of any species growing exponentially for a unlimited period of time, किसी की भी नहीं, except for human beings। यानी कि ये जो एक्सेप्शन आ गया ह्यूमन बींग्स के केस में, ये प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों पे उतना ऑपरेट नहीं करता जितना कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ऑपरेट करता है, and because we have made artificial environment as such in which we are living, but that can be a problem after some time। now सोचिएगा किस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये होता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरी ग्रोथ कर्व है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है और यहाँ पे टाइम है, ये देखिए यहाँ पे पहले लैग फेस है, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेस, बहुत तेज से पॉपुलेशन बढ़ी, फिर से ये स्टेशनरी फेज आ रहा है, ऐसे आप देख रहे हैं। ये जो लाइन ऊपर वाली आप देख रहे हैं, और ये वर्ड के, अल्फाबेट के यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हैबिटेट, कैपेसिटी ऑफ अ हैबिटेट। कहने का मतलब यह है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में किसी भी स्पीशीज के लिए एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये इससे ये भी हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, क्योंकि फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ये वजह है कि वो वहाँ रह नहीं पाएंगे। अगर रहते हैं तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फूड को लेके रह सकते हैं, यानी उनके फूड को खुद एब्जॉर्ब करके खुद खा के जिंदा रह सकते हैं। एंड दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो वी आर डिप्राइविंग अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट and utilizing their resources in order to sustain our population. So that is what human beings are doing. So कैरिंग कैपेसिटी फिक्स्ड होती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। एक ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे वो उस पर्टिकुलर हर स्पीशीज के लिए जैसे जैसे वो पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर बढ़ता जाएगा और कैरिंग कैपेसिटी के पास आता जाएगा, वेरी नियर टू दैट कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन उस स्पीशीज की, अपने आप उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी कि आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वो भी घटती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी के नियर होगी, वैसे वैसे इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ठीक है, तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और ये ग्रोथ कर्व जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बताता है, ये वाला लॉजिस्टिक, जो कि नेचुरली होता है बड़े ऑर्गेनिज्म में। तो इसका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के का मतलब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी और एन का मतलब पॉपुलेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आप यहाँ पे देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन है, सॉरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम नहीं, एन का मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो यहाँ देखिए डी एन अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है आर एन पे, ये तो पहले वाले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की तरह है, लेकिन ब्रैकेट में कुछ और बातें दी हुई हैं। यही ब्रैकेट में एक चीज अटैच है, के माइनस एन, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए पॉपुलेशन ऑलरेडी 90 हो गई है, कैरिंग कैपेसिटी 100 है,
तो आर एन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 90 अपॉन 100, तो आर एन इंटू 10 अपॉन 100। आप देख रहे हैं अगर मान लीजिए वही कैरिंग कैपेसिटी 100 होती और यहाँ एन जो होता वो सिर्फ 30 होता, तो 100 माइनस 30 क्या हो जाता 70 अपॉन 100, यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उस कंडीशन में ज़्यादा होती। इसका मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचती है, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इस ग्रोथ कर्व को हम बोलते हैं वर्नुलिस्ट ग्रोथ कर्व या पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में अलॉन्ग विद द डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिएगा उसको। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट होमवर्क असाइनमेंट। नेम 2 पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। वो आप जानते हो, लिख सकते हो। ड्रॉ अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। रिमेंबर, ये जो ग्राफ है वो पूछा जाता है, ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वर्नुलिस्ट ग्रोथ कर्व, ड्रॉ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग वर्नुलिस्ट ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये भी पूछा जाता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये भी पूछा जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।